का मैंने। अच्छा ठीक है, फ्रोजन सेक्शन और बॉर्डर लाइन। यस मैम। ठीक है, मतलब ये सही बात है, ये दोनों वीक हेलो अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी जी। मैडम इसकी रिकरेंस का बता दें कि अगर एक दफा हमने कीमोथेरेपी दे दी है तो अगर ये रिकरेंट होता है तो हमने कीमो रेडियो दोनों देनी होंगी या पैलिएटिव? अच्छा ठीक है, और जी मोमना जी वाइस्टाम, हाँ जी, आपका हो गया इशू हल? जी जी मैडम हो गया, सॉरी मैडम वो मेरा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम। अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलें शुरू करें हम आपके केस से। जी मैडम। जी जी। मैडम मैंने एक छोटा सा केस तैयार किया, उसके मुताबिक फिर मैं जी जी प्रेजेंट बताइए। करूंगी। 60 years old post-menopausal patient with complaint of mass abdomen noticed recently, causing distension of abdomen along with loss of appetite and weight loss since last few months. मैडम ये मेरा केस है, I'll try to complete within 10 minutes. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए हम आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? Okay, madam. After introduction and greeting the patient, I will confirm the findings that are provided to me from the patient, and I will continue with the demographic details. Furthermore, I will start with the details of the presenting complaint and do the risk assessment of the patient. First of all, I'll ask about the mass of the patient, its size, onset of the mass, and whether it's progressing or the size of the mass is static. It is whether I'll further ask about the associated features, whether it is associated with pain, and ask about the features of the pain, its intensity, its relieving or aggravating factors, or any associated urinary or bowel complaints, shortness of breath, bloating, and other features like postmenopausal bleeding and vaginal discharge. Furthermore, I'll inquire about the risk assessment of the patient, including the age of menarche, age of menopause, history of any breast, colon, ovarian or endometrial cancer in the first degree relatives of the family. I'll ask about the parity of the patient, whether the previous children were breastfed or not, if she's using any contraception in the form of OCPs, or if she had any bilateral tubal ligation, if she had used any form of ovulation induction, and I'll also ask about, as the patient is postmenopausal, if she has used any form of hormone replacement therapy. I'll ask the patient about past medical or past medical history regarding any comorbids or any surgical history or any previous history of cancer in the patient. Further, I'll proceed with the examination. Starting with the general physical examination, I'll specifically inquire about the BMI and proceed with the breast examination and also check the supraclavicular lymph nodes. Regarding the local examination, I'll first start with the inspection, then palpation, and then percussion. At inspection, I'll check of any visible visible features on the skin, the location of the umbilicus and its associated features. On superficial and deep palpation, I'll assess the mass or that the patient has presented with, its size, its location, its mobility, whether it's tender or not, its consistency, whether solid or cystic, its surface, whether smooth or irregular, overlying skin changes, the or any associated visceromegaly. And on percussion, I'll rule out the presence of any ascites by shifting dullness and fluid thrill. On bimanual examination, I'll confirm the findings that I have picked on per abdominal examination. I'll do the bimanual examination and try and check if the mass is separable from the uterus and try to reach its lower limit. I'll check the adnexa for any unilateral or bilateral fullness, and at the end I'll also assess the size and position of the uterus. Coming toward the investigations, after the general investigation including baselines, ECG and chest X-ray, I'll move on to the specific investigation. Among that, I'll first of all ask for a CA-125 as this patient is post-menopausal, and the abdominal pelvic scan. In the abdominal pelvic scan, I'll look for the features, whether solid or cystic, unilocular, multilocular, the blood flow, papillary projections, regular or irregular, presence of acoustic shadows, evaluation for any NETs and ascites. I'll further calculate the RMI and consider CT scan accordingly to know the extent of the disease.
Coming toward the management, I'll first counsel the patient according to the findings and the history, and discuss with the multidisciplinary team before proceeding further for the management of the patient. In the pre-op counseling, I'll specifically ask the patient for her desires to conserve the uterus organ. If the findings that I have found on the investigation and the history, they support malignant mass, then I will discuss with the patient regarding the surgery which we are going to proceed, and explain the pre-op procedure and the pre-op preparation, including optimizing the patient for the surgery and bowel preparation. Furthermore, I'll involve the multidisciplinary team, have the anesthesia fitness and consent of the patient. I'll start with the midline vertical incision, have the peritoneal washings, and then stage the disease, stage the cancer by inspecting the mass and assessment of the lymph nodes and looking for any mets, looking at the surface of the liver, the undersurface of the diaphragm, any dystromegaly, involvement of the bladder or bowel, and the lymph nodes. Then I'll proceed with staging laparotomy, and then I'll call the patient for follow-up and do the post-op counseling. And I will review the operative findings and the histopathology report on follow-up, and then decide if the patient needs chemotherapy or not. If the grade is 1A or 1B, if the stage is 1A or 1B, low-grade tumor, then I'll counsel the patient that she doesn't need any chemotherapy, but she will be put on further follow-up. And I'll explain to her that she will be visiting the doctor for the follow-up 3 monthly for first 2 years, and then 6 monthly for next 5 years, and then yearly. And at every follow-up, I will do the general physical examination, pelvic examination, CA-125, and pelvic scan. But if the malignancy on histopathology, the stage comes out to be 1C or above that, then I will counsel the patient that she will be needing chemotherapy, and I'll explain different types of chemotherapies that are available, its side effects, and how many cycles will be given to the patient. And I'll explain their doses and the side effects to the patient. And at the end, I'll ask the patient if she or any of the attendant has any questions regarding the procedure or the follow-up. And that's it. So you have finished in almost 7 minutes. Okay. तो लेकिन ये तो है, अब इस पे बाकियों की मैं ओपिनियन पूछना चाहूंगी कि इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली एक केस सिनेरियो था जो जाहिर है किसी भी उसमें हो सकता है स्टेशन पे, लेकिन ये है जो कि एक पैटर्न तो चला गया, लेकिन इसमें पेशेंट की कंडीशन ऐसा सच हमने डिस्कस नहीं की, यानी हमने उसका एक प्लान तो हमने डिस्कस कर लिया, यानी उसमें हमने क्या हिस्ट्री पे पूछना है या क्या एग्जामिनेशन पे देखना है, क्या हमने इन्वेस्टिगेशन करानी है, बट देयर इज नो डिस्कशन पर्टेनिंग टू दिस स्पेसिफिक पेशेंट। और एग्जाम में ऐसा कम ही होता है कि हम किसी एक पेशेंट को जिसका सिनेरियो दिया हुआ है उसको हम डिस्कस ही ना करें, उसको टच ही ना करें। सो इसमें मतलब इसमें ऐसे भी हो सकता था ये क्वेश्चन कि एक पेशेंट जो आपके पास प्रेजेंट करता है, व्हाट इज योर फर्दर एवेल्युएशन, हाउ यू विल एवेल्युएट हर फर्दर एंड मैनेज, ठीक है, उसमें एक ओवरऑल मैनेजमेंट आपने बता दी। मेरी बात आप समझ रहे हो? जी जी मैं समझ रही हूँ जी जी। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर फीचर्स इस पेशेंट की अपनी भी होंगी, और वो ये जो आपका 3-4 मिनट का बीच में गैप आएगा, यानी जो आपने वो टाइम जो बीच में सेव किया उस पे वहां पे या तो वो सिनेरियो में दिया होंगी चीजें, या फिर एग्जामिनर आपको बताएगा कि इसकी हिस्ट्री में ये चीज थी, इसके एग्जामिनेशन पे ये फाइंडिंग थी, इसके इन्वेस्टिगेशन पे ये फाइंडिंग थी, आप इसको कैसे प्रोसीड करोगे, बिकॉज दिस इज अ जनरल प्लान ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर evaluation. ये एक जनरल है, बट हाउ यू अप्लाई इट ऑन अ स्पेसिफिक पेशेंट, उसमें जो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द केस होती है वो वाली चीज फिर हमें इसमें चाहिए होगी। अब हमें नहीं पता कि इस पेशेंट में कोमॉर्बिडिटीज कोई है या नहीं है, फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, उसके सिम्टम्स क्या थे, फॉर हाउ लॉन्ग शी इज हैविंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स, एंड मोर ओवर व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑन एग्जामिनेशन। हमें नहीं पता वो सिस्ट जो मैस है वो कितना बड़ा है, उसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर इट्स पर्टिकुलर फीचर्स ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एंड व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑन इन्वेस्टिगेशन।
तो अगर आप हमें इसके बारे में ये बता दें तो द केस विल बी मोर स्पेसिफिक एंड इंडिविजुअलाइज्ड। मैडम आप अगर फाइंडिंग्स दे दें तो मैं उसके मुताबिक अच्छा, यानी आपको फाइंडिंग केस का नहीं है सच पता, यानी आपने एक वैसे खुद से बनाया। ओके, जी जी मैडम बिल्कुल। अब अगर हम इसमें ये कहें कि पेशेंट में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई कोमॉर्बिडिटी अदरवाइज एक्सेप्ट फॉर हैविंग हाइपरटेंशन ऑफ एन ऑन फॉर विच शी टेक्स मेडिसिन इरेगुलरली एंड BMI इज 32, ठीक है, ये फिर आप नोट कर लो इसका कि BMI इसका 32 है अगर हम इसको लेते हैं, और Yes, please. ऑफ एन ऑन हाइपरटेंशन है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है इसकी, and the symptoms she is having are pertaining to the GI symptoms as you mentioned, कि इसमें Yes, उसको जो है वो उसके GI symptoms उसको थे, except for that there is no other problem, there is no postmenopausal bleeding, neither the discharge। अब जो इसकी एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स हैं, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स पे एक तो आपने सिर्फ सुप्राक्लेविकल नोड्स का मेंशन किया, इज इट एनफ कि सिर्फ सुप्रा मैडम देखें? इंग्वाइनल lymph nodes as well। हाँ जी, इनग्वाइनल भी हमने देखनी होती है, ठीक है। सुप्राक्लेविकल खास तौर पे जो ओवेरियन में हम देखते हैं वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ आप इनग्वाइनल भी जरूर देखते हो, ठीक है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज नॉट स्पेसिफिक, उसमें कोई एब्नॉर्मेलिटी नहीं हमें पता चली, और बाकी ये है कि सुप्राक्लेविकल या इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स आर नॉट पैल्पेबल, क्लिनिकली नॉट पैल्पेबल। अब जो एग्जामिनेशन ऑफ मैथ्स से रिलेटेड जो आपने सारी चीजें बताई हैं उसमें एक ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ कि इट्स ऑलमोस्ट 22 सेंटीमीटर इन साइज, जो इसका है जो इसका ओवरऑल साइज है इसका फ्रॉम द सिम्फिसिस प्यूबिस ऑनवर्ड, 22 centimeters in size, with mild abdominal distension, shifting dullness is positive, and on bimanual vaginal exam। अब ये जो आपने फॉर्नेसिस की भी बात बताई थी ना, वो हमें साइज के मुताबिक होता है। फॉर्नेसिस को आप पल्पेट सिर्फ उस वक्त कर सकते हो when the pelvic mass is less than 16 centimeter in size, उसके बाद आप उस पे कमेंट प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो 20 centimeter in size है with cystic and solid in nature on palpation or on percussion as well, और इसके अलावा इसमें mild abdominal distension है and shifting dullness is positive। On bimanual examination the uterus is not felt separately, we cannot comment on the adnexa, but there is a pelvic mass rising from the pelvis which is again approximately 22 to 24 centimeter in size, क्योंकि वहां पे आप जब बायमैनुअल पेल्विक करते हो तो फिर आप वहां पे साइज आप मेजरिंग टेप से नहीं कर रहे होते, वो एक अप्रोक्सीमेशन होती है, विद फीलिंग ऑफ द सॉलिड एरियाज, ठीक है, और ये उसका है, ये उसकी फाइंडिंग्स है। अदरवाइज स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे कोई ऐसी सर्वाइकल या विजाइनल चेंजेस नहीं आइडेंटिफाई नहीं हुई। अब इसके हम आते हैं, अब ये जो है चीज इसमें ये जो मैंने आपको दी इस पे आप क्या अब फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपने सारी हमें बता तो दी, बट पर्टिकुलरली अबाउट दिस केस जिसमें हमने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स हमें अब पता है, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन आपकी होंगी स्पेसिफिक? Madam, I would like to know CA 125 and further features on abdominopelvic ultrasound. Okay, CA 125 is suppose is 86. Okay. ठीक है। And regarding ma'am, it's as you have already mentioned that on examination it felt solid, but I would like to know the findings on pelvic scan, whether it has solid components, ascites, its unilaterality, bilaterality, assessment for the METs and multilocularity. On ultrasound, uterus is normal in size with thin endometrium, and there is a right adnexal cyst mass, बल्कि उसको हम कहेंगे mass of approximately 22 centimeter in size, which is multiseptated, and there are solid areas of 2 to 3 centimeter in size. There is mild ascites, ascitic fluid, mild to moderate ascitic fluid. Okay, madam, I will calculate the RMI, which I have calculated it is more than 250. Then further I will, as it is more than 200, the patient is. इसमें इसका RMI कितना निकला है?
Madam, 3 multiplied by 86 multiplied by 3. It is more than 250. वो एग्जैक्ट वैसे अगर कर लें तो ठीक है, चलो 250 भी, ये भी एक्सेप्टेबल है। अब इसके बाद आगे आपने प्रोसीड कर, CT ये scan. देखो ये एक क्लियर कट केस हम जो इसमें डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। हो Yes, सकता है कि ma'am. मैं आपको इसमें एक सॉफ्ट जो है वो सिंपल सिस्ट का भी सिनेरियो दे देती, लेकिन ये केस है जो क्लियरली मैलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जी, इसको ma'am. वन बाय वन डिफरेंट सिनेरियो में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें फर्दर आपका प्लान क्या होगा विद RMI मोर देन 250? हाँ जी, Madam, I will investigate further with the CT abdomen pelvis to know the extent of the disease. इसमें आप CT एब्डोमेन से पहले कुछ और करना चाहोगे? Ma'am, I'll involve the MDT team. Involvement of MDT team. अच्छा, और मैडम हाँ बता दें। इसमें देखो, अब ये हमें RMI 250 से ज्यादा जो है इसका हमें पता चल गया कि अब ये मेलिग्नेंट है। अब जब मेलिग्नेंट नेचर हमें पता चल गई तो फर्दर वी हैव टू असेस द टारगेट ऑर्गन्स एज वेल एज द फर्दर इमेजिंग स्टडीज। ठीक है, हमने इसमें स्टेप टू स्टेप इन्वेस्टिगेशंस करवाई। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हमें लगा कि ये मेलिग्नेंट मैस है। उसके बाद हमने इसका CA 125 करवाया, वो भी रेस्ड है। इसके बाद हमने इसका जो अल्ट्रासाउंड पे फीचर्स आर सजेस्टिव ऑफ मेलिग्नेंसी। तो इसके बाद हमारा सारा टारगेट ऑर्गन एवेल्युएशंस एज वेल एज द फर्दर इमेजिंग स्टडीज। इसमें जो टारगेट ऑर्गन फंक्शन की असेसमेंट हम कैसे करते हैं? मैडम लिम्फ नोड्स की असेसमेंट तो कुछ हद तक CT स्कैन पर भी हो जाएगी। विल बी रिक्वायर MRI और नॉट? नहीं, टारगेट ऑर्गन का मतलब क्या है? जहां पे सेकेंडरीज जा सकती हैं, जहां पे मेटास्टेसिस जा सकती हैं। ठीक है, तो वहां वो हमने लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, क्योंकि जो CT एब्डोमेन है वो प्लेन भी होता है, वो कंट्रास्ट के साथ भी होता है। प्लेन में हमें इतनी टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं पता चलती, उसमें फॉल्स पॉजिटिव आर्टिफैक्ट्स आने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो कंट्रास्ट के साथ है, कंट्रास्ट से पहले आपकी फर्दर जो रीनल फंक्शन टेस्ट है, कम से कम वो असेसमेंट उसकी हो जानी चाहिए। तो इसके अलावा एक्सरे टेस्ट। अब CT एब्डोमेन विद कंट्रास्ट वुड बी अ प्रेफरेबल चॉइस। तो इसलिए अब इसमें हमने टारगेट ऑर्गन फंक्शंस प्लस CT एब्डोमेन विद कंट्रास्ट इफ द रीनल फंक्शन टेस्ट्स आर नॉर्मल। ठीक है, फिर हम इसको हम कंट्रास्ट के साथ तभी कर सकते हैं। व्हाट CT एब्डोमेन एडिशनल इंफॉर्मेशन उससे हमें क्या मिलती है, वो हम क्यों करवाएंगे? हमें अल्ट्रासाउंड पे तो पता चल गया और हमें पता है कि अब हमने इसका फर्दर प्लान क्या करना है। तो व्हाट इज द एडिशनल बेनिफिट ऑफ डूइंग CT एब्डोमेन? हमें कोई अब एम्बिग्विटी नहीं रह गई कि इसमें मेलिग्नेंसी की ही फीचर्स हैं, तो फिर हम CT एब्डोमेन क्यों करवाएंगे? जी मोमना। मैडम एक्सटेंट ऑफ डिजीज देखने के लिए, मैडम एक्सटेंट ऑफ द डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमें पता हो कि एक्सटेंट ऑफ द डिजीज क्या है, ताकि बिफोर प्रोसीडिंग फॉर सर्जरी हमें अंदाजा हो कि हम किस हद तक एक्सटेंसिव सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। मैम फैट प्लेट्स देखते हैं कि ये रिजेक्टेबल है या नहीं, क्या हम इसे रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं? हाँ, उसमें बेसिकली एक्सटेंट ऑफ सर्जरी हमें उसकी जो एक स्टेजिंग वाला जो चीज है वो हमें बिफोर हैंड पता होगी, वरना तो हमें पता है कि ये मेलिग्नेंट है, हमने इसको खोलना ही खोलना है। लेकिन खोलने से पहले हमने कुछ चीजें डिसाइड करनी होती हैं कि ये रिसेक्टेबल है नहीं है, इसकी एक्सटेंट क्या है, इसके मेटास्टेसाइज ये कहाँ तक हुआ है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट कितनी है। तो ये सारी चीजें हमें CT एब्डोमेन पे पता चलेंगी। ठीक है, इसलिए CT एब्डोमेन एंड पेल्विस बोथ। और एक्सरे टेस्ट हमें लंग्स की जो सिचुएशन है वो हमें बताएगा। एंड इफ देयर इज सम डाउट तो इवन हम CT टेस्ट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मेटास्टेसिस और एक्सटेंट ऑफ सर्जरी को डिटरमिन करने के लिए हम ये करते हैं। अदरवाइज हमें पता है कि हमने इसकी लेप्रोटमी करनी ही करनी है।
लेकिन लेप्रोटमी करने से पहले जो कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जो कुछ प्री Yes, ma'am. मेजर्स होती हैं, बिकॉज इफ द पेशेंट इज इन स्टेज 3 और 4 या उसमें पेरिटोनियम तक है या ओमेंटम तक है, तो उसमें समटाइम्स इट्स नॉट वाइज टू गो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर द डीबल्किंग सर्जरी ऑन द फर्स्ट हैंड एज अ फर्स्ट स्टेप। तो उसमें हम हमेशा कुछ और स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। एंड व्हाट आर दीज? Ma'am, neoadjuvant chemo. जी, If the disease is ma'am advanced अगर हो तो हम neoadjuvant chemo consider उसमें प्री हैं ऑफ before हम performing surgery. प्री ऑफ कीमोथेरेपी के 3 कोर्सेज कम से कम दे के, और उसके बाद हम उसकी इंटरवल सर्जरी करते हैं, और उसके बाद बाकी के जो कीमोथेरेपी के कोर्सेज हैं वो उसके adjuvant बाद chemo. कंप्लीट करते हैं। तो ये इंटरवल Yes. जो है वो लेप्रोटमी इसकी होगी। Surgery. तो ये चीजें हमें नहीं पता चल सकती जब तक हम इसको ये सारे प्रोसीजर ना करें। तो एक्सटेंट ऑफ डिजीज का जानना बहुत जरूरी होता है बिफोर सर्जरी। अब सपोज ये पेशेंट अगर स्टेज 3 या 4 में है, ओमेंटल केक है, सारी ओमेंटल इसकी मेटास्टेसिस है, एंड यू वांट टू गो फॉर द कीमोथेरेपी, कैन यू गो फॉर इट स्ट्रेट फॉरवर्ड? उसके लिए और हमें Sorry, ma'am. क्या चाहिए होती है? Ma'am, मतलब ये कि एक्सटेंसिव डिजीज है, सेकेंडरी मेटास्टेसिस है, और इसमें आप जो है वो उसमें आपने डिसाइड किया इन ट्यूमर बोर्ड मीटिंग्स, आपने ये डिसाइड किया कि इसमें इट्स नॉट वाइज टू गो फॉर द डीबल्किंग सर्जरी राइट नाउ, क्योंकि वो पूरी तरह रिसेक्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें आपने ये डिसाइड किया कि इसको पहले कीमोथेरेपी देनी चाहिए। कीमोथेरेपी क्या हम ऐसे किसी पेशेंट को दे सकते हैं जिसका हमने सीटी कर लिया और उस पे हमें पता चला एक्सटेंसिव डिजीज है? Madam, I'll optimize the patient first. I'll check the CBC, the LFTs, the RFTs, and explain to the patient the side effects of chemotherapy, if they will be tolerable or not, and then I'll proceed with the neoadjuvant chemo. नहीं, मैम पहले हमने डिसाइड कर लिया, देखो हमने सारी करेंगे। चीजों के बाद डिसाइड कर दिया कि हमने इसको कीमोथेरेपी देना। मेरा सवाल आप फिर भी नहीं समझे कि कीमोथेरेपी देने से पहले कुछ और हमें इंफॉर्मेशन चाहिए apart from the test। मैम जी। पहले हम बायोप्सी लेंगे, ये देखेंगे कि किस टाइप का ट्यूमर है, और हमने देखो टिश्यू हिस्टोलॉजी को डिफाइन करना है। अब बहुत सारे, अब इसमें एक ही तरह के तो ट्यूमर नहीं होते, डिफरेंट टाइप के हिस्टोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं ट्यूमर्स में। अब अगर अब ओवेरियन मेलिग्नेंसी जो है वो ठीक है, एक प्रेवलेंस जो एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स हैं उनकी ज्यादा होती है इन द पोस्ट मेनोपॉजल एज, लेकिन बाकी ट्यूमर्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं, स्टिल दे कैन अकर, और उनमें से कुछ कीमो सेंसिटिव होते हैं, कुछ कीमो रेजिस्टेंट भी होते हैं, और फिर उनकी हिस्टोलॉजिकल पैटर्न के हिसाब से कीमोथेरेपी डिसाइड होती है कि वो हमने सिंगल देनी है, कॉम्बिनेशन देनी है, व्हाटएवर। तो उससे उसका हिस्टोपैथोलॉजी को देखना बहुत जरूरी होता है बाय बायोप्सी। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ टेकिंग बायोप्सी? इसमें हम किस तरीके से बायोप्सी लेते हैं? मैडम इमेज बेस्ड बायोप्सी लेंगे, हमने पहले बायोप्सी मैम लेनी सीटी है। गाइडेड लेते हैं, सीटी गाइडेड लेते हैं। कैसे? इमेज बेस्ड बायोप्सी मैडम ठीक अगर है, मैसेज ठीक फ्लूइड है है। ना, अगर मैडम एसेटिक फ्लूइड है ना, तो एसेटिक फ्लूइड को मैडम एसेटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करेंगे, उससे भी हमें पता चल जाएगा कि उस वॉशिंग्स में कौन सी सेल्स आ रही हैं। उसकी कितनी कुछ सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है एसाइटिक फ्लूइड एस्पिरेशन की? मैडम तकरीबन दैट इज वन वे, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी एज कंपेयर टू बायोप्सी कितनी है? मैडम अगर मैं कहूँ तो मैंने 40 to 50% है, नॉट मोर देन दैट। लेकिन हाँ, तो उसमें हमें, अब देखो फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं उसमें, कि उसमें मेलिग्नेंसी है नहीं है, लेकिन दूसरे सेल्स की शेडिंग हुई, उसकी एक्सफोलिएशन होगी, मेसोथेलियल सेल्स की एक्सफोलिएशन होगी, और आपको लगा कि ये मेलिग्नेंट सेल्स हैं। इसके अलावा फॉल्स नेगेटिव है, फॉल्स नेगेटिव भी जो हैं वो जाहिर है वो ऑपरेटर की टेक्निक पे भी डिपेंड करता है। तो फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव आर क्वाइट हाई इन एसाइटिक फ्लूइड एस्पिरेशन एंड देन सब्जेक्टिंग इट टू हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। लेकिन एसाइटिक फ्लूइड एस्पिरेशन वर्सेस बायोप्सी, मेरा सवाल ये है कि एसाइटिक फ्लूइड एक तरीका है जब हम बायोप्सी नहीं ले सकते,
ठीक है, लेकिन बायोप्सी लेने का तरीका इमेज गाइडेड तो है डेफिनेटली, बट व्हाट आर दोज टेक्निक्स? इमेज गाइडेड तो ये है कि जहां पे उसका मकसद ये होता है कि जहां पे कोई सॉलिड टिश्यू है वहां से हम ले लें उसको। पेरिटोनियल डिपॉजिट से लेंगे ना मैम? लेकिन हमें कैसे, वो तो हमने इमेज गाइडेड ही लेनी है ना। लेकिन तरीका देखो, इसमें तरीके का मतलब ये है कि एक चीज होती है FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन। फाइन नीडल एस्पिरेशन नाउअडेज इज नॉट अ गुड टेक्निक, ठीक है, उसमें स्पिलेज ऑफ सेल्स होने के चांसेस होते हैं। जो ट्रू कट बायोप्सी है, ट्रू कट बायोप्सी होती है जिसमें बकायदा एक वो उसका ट्रू कट वाला कैनुला होता है, जरा थोड़ा सा मोटे साइज का होता है, और उसके आगे जैसे बिल्कुल बारीक नाइफ्स की तरह से ये होता है जो ट्रू कट बायोप्सी, उसमें स्पिलेज का रिस्क एज सच नहीं होता। एंड दैट इज जस्ट लाइक टेकिंग एन एक्सिशनल बायोप्सी, यानी आप जैसे थोड़ा सा इंसिजन दे दो स्किन में और उसमें से फिर आपने टिश्यू निकाला, उसमें डिससेमिनेशन एंड द स्पिलेज ऑफ malignant cell is less as compared to FNAC। तो ट्रू कट बायोप्सी से आपने ये बायोप्सी लेनी है जो कि जिसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है। इसलिए आप एसाइटिक फ्लूइड जो है, अगर फर्ज किया ये बहुत डीप टिश्यू है, कहीं इसका जो सॉलिड टिश्यू है, तो उसमें दो तरीके और होते हैं कि या तो आप सिस्टिक फ्लूइड की एस्पिरेशन कर लो, विच विल बी अ बेटर चॉइस ऑफ कोर्स, या फिर एसाइटिक फ्लूइड एस्पिरेशन तो हम तब करते हैं जब हमने पेरिटोनियल मेटास्टेसिस को वो करना हो। अगर ये लोकली इन्वेजिव है या लोकली मैलिग्नेंट है जिसने अभी मेटास्टेसाइज नहीं किया हुआ टू द अदर स्ट्रक्चर्स, तो वहां पे सिस्टिक फ्लूइड एस्पिरेशन विच अगेन इज हैज अ पोर सेंसिटिविटी, वो ज्यादा बेहतर होगी एज कंपेयर टू द एसाइटिक फ्लूइड एस्पिरेशन। वो तो हमें जब मेटास्टेसाइज कर जाता है ट्यूमर जो ग्रॉसली इन्वेजिव होता है, उसी में ये पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए इफ दैट सॉलिड स्ट्रक्चर इज विद इन द रीच ऑफ इमेज गाइडेड योगा, अगर हमारी रीच में है तो हम उससे लेंगे, अदरवाइज सिस्ट फ्लूइड एस्पिरेशन, और उसमें फिर जो है वो हमने फिर बायोप्सी करके उसके मुताबिक फिर हमने उसको कीमोथेरेपी देनी है। तो मैडम ये जो ट्रू कट बायोप्सी हम कर रहे हैं वो भी तो हम जो है ना इमेज गाइडेड कर रहे हैं, तो इसमें ब्लीडिंग के चांसेस नहीं होंगे? हाँ, तो इसमें ब्लीडिंग के चांसेस नहीं होंगे मैडम? नहीं होते तो हैं, लेकिन देखो बहुत कम एरिया होता है जो हम जिसको बायोप्सी करके निकाल रहे होते हैं, बहुत कम एरिया, और ऐसा अमूमन हम उन केसेस में करते हैं जहाँ पे सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं। ज्यादातर जो मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं, या डिसजर्मिनोमा है, या यॉर्क सैक ट्यूमर है, या फाइब्रोमा है, इस तरह की चीजें, तो उनमें हम ये ज्यादा पॉसिबली कर सकते हैं। बायोप्सी इज नॉट फिजिबल इन ऑल केसेस। तो जहाँ पे बायो, हाँ जी, जब हम ट्रू कट बायोप्सी लेते हैं तो हम अगर ओमेंटल केकिंग है तो हम ओमेंटम की लेंगे? नहीं, ओमेंटम की नहीं लेंगे। देखो ओमेंटल केक जो है वो एक, ओमेंटम क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, इसलिए ओमेंटल केक बनने का ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर मैलिग्नेंसी, बार दफा ये इवन इन्फेक्टेड केसेस में भी ओमेंटल केक बन जाते होते हैं, ठीक है, वो एक डिफेंसिव लेयर है, जैसे लिम्फेटिक्स जो है वो एक डिफेंसिव लेयर है जो अरेस्ट करते हैं इन्फ्लेमेशन को या मैलिग्नेंसी को एट वन स्टेज, ठीक है, मैम हमने फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है। तो इसलिए जो है वो ओमेंटल केक से हम बायोप्सी नहीं लेते, बायोप्सी हमेशा मैस की लेनी चाहिए, मैस की, तब ही हमें हिस्टोपैथोलॉजी उसकी पता चलेगी। और जो मेटास्टेसिस होते हैं, सपोज ये एक मेटास्टेटिक ट्यूमर है ओवरी का, तो मेटास्टेटिक ट्यूमर ओवरी का वो हिस्टोपैथोलॉजी शो नहीं करेगा जो कि एक्चुअल प्राइमरी लीजन की है। अलबत्ता हमें वो ये बता देगा कि ये हो सकता है इसको रीजन कौन से, जैसे क्रूकन बट ट्यूमर होते हैं, तो वो उसमें जब हम लेंगे तो हमने सिग्नेट सेल वो पता चल जाएंगे, तो देन वी हैव टू सर्च फॉर द प्राइमरी अदर वेयर, जो किसी और जगह पे प्राइमरी है, फिर हमने उसको सर्च आउट करना होता है। तो इसीलिए हम जो मेटास्टेसिस होते हैं उनकी बायोप्सी लेके एक्चुअल जो प्राइमरी हिस्टोपैथोलॉजी होती है, समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल कि ये अब जर्म सेल ट्यूमर्स हैं या यॉर्क सैक ट्यूमर्स हैं या क्लियर सेल कार्सिनोमा है या एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा है, एग्जैक्टली वही हिस्टोपैथोलॉजी उसके मेटास्टेसिस में नहीं हो सकती। तो इसलिए मेटास्टेसिस में से आप नहीं लोगे, उसमें जो प्राइमरी ट्यूमर है वो आप उसी में से लोगे। एक्सक्यूज मी मैम, जी
मैम फिर एग्जामिनर को मैं यहाँ पे क्या स्टेप बताऊंगी कि बिफोर कीमोथेरेपी आई वांट द टिश्यू हिस्टोलॉजी एंड दिस Yes, टिश्यू of हिस्टोलॉजी। course. ये इसमें इसकी रिकमेंडेशन होती है कि आपने उसकी हिस्टोपैथोलॉजी लेनी है। और बहुत मैम कम ऐसे होता है, बहुत कम ऐसे होते हैं कि आप किसी भी तरीके से अगर हिस्टोपैथोलॉजी नहीं ले सकते तो आप जनरली जो ग्रॉसली हम कीमोथेरेपी क्या हम सिस्प्लेटिन या पैक्लिटेक्सेल वगैरह ही देते हैं या कार्बोप्लेटिन वगैरह ग्रुप ऑफ ड्रग्स, तो वो हम प्रोविजनली दे देते हैं विच मे और मे नॉट इम्प्रूव द सिचुएशन। तो उसमें फिर ट्रायल बेसिस पे दिया जाता है। बट टू बी वेरी स्पेसिफिक, इसमें हमने हिस्टोलॉजी गाइडेड कीमोथेरेपी देनी होती है। तो हम तो चूंकि एग्जाम में हम एक एविडेंस बेस्ड चीजों पे बात कर रहे होते हैं, तो इस वजह से कीमोथेरेपी followed by histopathology of that tumor and that preferably would be taken by जो है ये ट्रू कट बायोप्सी। अब बात दफा ऐसे होता है कि आपको अल्ट्रासाउंड पे या सीटी पे इतनी एग्जैक्ट सेवेरिटी ऑफ सिचुएशन का आइडेंटिफाई नहीं होता एंड यू प्लान फॉर द लेप्रोटमी, स्टेजिंग लेप्रोटमी, आप उसको खोलते हो और पता चलता है कि ये तो इररिसेक्टिबल मैस है। और इररिसेक्टिबल मैस अगर आप लोगों ने देखे हों तो वहां पे ट्यूमर के अलावा कुछ नहीं होता, आप दूसरे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते हो। एंड ऑल ओवर देयर आर डायलेटेड ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल्स वो होती हैं जो लो रेजिस्टेंस ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर उसके मसल सेल्स नहीं होते। दीज कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इनका हेमरेज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो कीमोथेरेपी ना सिर्फ ये कि इसको इररिसेक्टिबल से रिसेक्टिबल में ले आती है बल्कि उसका ब्लड सप्लाई भी कम कर देती है। तो कमिंग बैक टू वो जो कि हमने उसको स्टेजिंग लेप्रोटमी हमने की और हमें इररिसेक्टिबल मैस लगा, फिर आप क्या करोगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है? आपने लेप्रोटमी की, इररिसेक्टिबल मैस आपको सामने लगा, फिर आप क्या करेंगे? मैम हम ट्रू कट बायोप्सी लेके आउट नहीं है उसमें, तो फिर आपके सामने सारा मैस है, बाहर निकल आएंगे मैडम उसको बायोप्सी ली और उसको बंद कर दिया। जी मैडम टच नहीं करना, अदरवाइज यू विल एंड नो वेयर। उसमें इतना हेमरेज होता है कि वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। सो जस्ट टेक बायोप्सी एंड कम आउट। तो उसमें तो सारा मैस आपके सामने है, उसी मैस में से आप बायोप्सी लो और उसको क्लोज कर दो। मैम फिर हम बायोप्सी मैट से कैसे ले सकते हैं? फिर तो हमें उन मैट से ही लेंगे ना, हम फिर उसकी प्राइमरी मास से कैसे लेंगे? बेसिकली इररिसेक्टिबल का मतलब ये है कि आपके सामने वो पूरा मैस है जिसको आप डिसेक्ट आउट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कि मेंटल केक भी आप हटा सकते हो, और मेंटल केक एक पूरा जो है वो केक की सूरत का मोमेंटम बना हुआ होता है, तो उसको आप हटा के बाकी मैस आपके सामने है लेकिन इररिसेक्टिबल है। इररिसेक्टिबल का मतलब ये है कि वो सारे स्ट्रक्चर के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि आप बगैर डैमेज किए उनको और बगैर एक्सेसिव या लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज के आप उसको निकाल ही नहीं सकते। और अगर निकालने की कोशिश करोगे तो ये दोनों कॉम्प्लिकेशन तो हो ही सकती हैं, लेकिन यू विल बी लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ रेजिडुअल मैस, यानी रेजिडुअल मैस इसमें बहुत ज्यादा पीछे पड़ा रहेगा। अब जब रेजिडुअल मैस ज्यादा होता है तो उसमें कीमोथेरेपी भी इतनी बहुत ज्यादा फिर इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि हम जो प्री ऑपरेटिव कीमोथेरेपी देते हैं उससे मसला हमारा उस मैस को खत्म करना नहीं होता, सिर्फ उसके साइज को कम करना होता है। क्योंकि वो जो बल्क ऑफ टिश्यू है वो निकालना फिर भी हमें पड़ेगा, खाली कीमोथेरेपी से मसला हल नहीं होगा, वो हमने सर्जरी करनी ही करनी है। लेकिन अगर हमने प्राइमरी सर्जरी ऐसी कर दी कि जिसके बाद हमने बहुत सारा रेजिडुअल मैस छोड़ दिया और उसके बाद कीमोथेरेपी दी और उसके बाद फिर दोबारा सर्जरी की, ये चीज रिकमेंडेड अब नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा जो आप मैस छोड़ोगे, रेजिडुअल मैस छोड़ोगे, क्योंकि आप टिश्यू को डैमेज कर सकते हो, ज्यादा या हेमरेज हो गया तो आपने उसको बीच में छोड़ दिया, इतना सारा जो मैस आपने छोड़ा वो कीमोथेरेपी को उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ दैट मैस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिव टू इधर कीमोथेरेपी या कुछ केसेस में रेडियोथेरेपी। जैसे एंडोमेट्रियल सीए में हम रेडियोथेरेपी को मेनली करते हैं, इसमें हम कीमोथेरेपी को मेनली करते हैं इन द ओवेरियन मैलिग्नेंसीज, एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू केसेस जहां पे एंडोमेट्रियल सीएबी या एंडोमेट्रॉइड टाइप कार्सिनोमास होते हैं। लेकिन रेडियोथेरेपी का रोल इसमें बहुत कम है, और सीए सर्विक्स में तो दोनों का ही रोल है, कीमो से सेंसिटाइज किया और उसके बाद फिर रेडियोथेरेपी दी। तो
इसलिए जो है वो इररिसेक्टेबल मैस को आप सिर्फ बायोप्सी लेके बंद कर देंगे। और जो रिकमेंडेड तरीका है, अगर हमने अब प्री ऑपरेटिव कीमोथेरेपी देनी है तो फिर आप इसमें ट्रू कट बायोप्सी लो और उसके मुताबिक 3 कोर्सेज कीमोथेरेपी के दो, उसके बाद सर्जरी करो और बाकी के 3 कोर्सेज कीमोथेरेपी के जो हैं वो इसके बाद दो। मोर देन 6 कोर्सेज ऑफ कीमोथेरेपी का कोई फायदा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा आप 2 ड्रग कंबाइन कर सकते हो कीमोथेरेपी की। कभी कभी हमें जो रिकरेंट केसेस होते हैं वो उनके लिए हमें सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी इज आल्सो ओके सफिशिएंट। अभी इसमें अब मेरा ख्याल है अभी इसमें तो और कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि फॉलो अप इन्होंने हमें बता दिया कि फॉलो अप अगर फर्स्ट किया हमने, वी हैव डेल्ट विद इट एडिक्वेटली। मैथ्स को उसके हिसाब से जो हमने देखा था कि इसमें ये सारा हमने किया 250 से ज्यादा था। इसके बाद हमने सारी इसकी स्टेजिंग लेप्रोटमी की और स्टेजिंग लेप्रोटमी पे जो है वो हमने सीटी एब्डोमेन पे हमें इतना इररिसेक्टेबल मैस नहीं लगा। हमने उसकी स्टेजिंग लेप्रोटमी करके उसके बाद फिर हमने स्टेजिंग करनी है। अब स्टेजिंग के जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं उसमें और क्या चीजें शामिल होंगी एक्सेप्ट फॉर द डी बल्किंग। डी बल्किंग के अलावा हम इस पेशेंट में क्या करेंगे जी मोमना? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ स्टेजिंग लेप्रोटमी? मैडम डी बल्किंग सर्जरी में सबसे पहले हम मिडलाइन वर्टिकल इंसिजन के थ्रू हमने ओपन किया, फिर हम उसकी पेरिटोनियल वॉशिंग लेंगे। नहीं, इसमें पेरिटोनियल वॉशिंग क्यों लोगे? एसाइटिक फ्लूइड है। मैस को इंस्पेक्ट करेंगे एंड विल लुक मोमना आपका कुछ नेट जो है ना डू मसला कर रहा है। द टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी विद। ठीक है मैडम अब आ रही है आपके पास? हाँ जी आ रही है मैडम। एसाइटिक टैप लेंगे, एसाइटिक फ्लूइड सैंपल लेंगे फॉर एग्जामिनेशन, देन वी विल प्रोसीड विद। सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा आफ्टर ओपनिंग द एब्डोमेन, आफ्टर एंटरिंग इनटू द पेरिटोनियल कैविटी? मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द सैंपल, एसाइटिक सैंपल लेंगे सबसे पहले। एसाइटिक फ्लूइड सैंपल को आप किसी भी और चीज को मैनिपुलेट किए बगैर, क्योंकि जब आप मैनिपुलेशन कर लेते हो तो वहां से जो शेडिंग होती है मैलिग्नेंट सेल्स की वो फिर फॉल्सली पॉजिटिव आ जाएगी और आपको लगेगा कि ये एक्सटेंसिव डिजीज है। ठीक है, तो एसाइटिक फ्लूइड टैप ले लिया आपने। और मैडम उसके बाद टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी विद बायलैटरल सल्पिंजोफोरेक्टमी, then intracoelic lumpectomy, peritoneal biopsies लेंगे, 2 from the paracoelic spaces and 2 from the subdiaphragmatic spaces, and then I'll do the systematic retroperitoneal lymph node dissection up till the renal vessels. कि बेसिकली इसमें ये जरूर बोलना चाहिए कि इन कोलैबोरेशन विद एन ऑन्कोलॉजिकल सर्जन, क्योंकि लिम्फ नोड बायोप्सी या लिम्फेडेनेक्टमी करना, और ये वो होगा जो क्लिनिकली जो बल्कि क्लिनिकली पैल्पेबल लिम्फ नोड्स हैं। क्योंकि पहले भी हमने ये बात की थी लिम्फेडेनेक्टमी से रिलेटेड कि इसका क्लिनिकली पैल्पेबल ये सिर्फ उस वक्त होती हैं जब ये 2 सेंटीमीटर से ज्यादा, अदरवाइज तो हमें कभी ऐसे फील तो नहीं होती। तो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा, इवन देन समटाइम्स इट्स नॉट सो इजी टू फील देम, चाहे वो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा भी हो, क्योंकि इसके अराउंड एरियोलर टिश्यू, फैट टिश्यू, ये सब चीजें इतनी ज्यादा होती हैं कि वो इसमें इतना क्लियर नहीं होता। सो द सर्जरी हैज टू बी इन कोलैबोरेशन विद एन ऑन्कोलॉजिकल सर्जन्स, क्योंकि एडिक्वेट सर्जरी होना एक इसका प्रोग्नोसिस को बढ़ा देता है। इसका सक्सेस रेट पे ही इस पे डिपेंड करता है कि हमने इसकी कितनी सक्सेसफुल डी बल्किंग की, क्योंकि वो वाले मैलिग्नेंट सेल जो लिम्फ नोड्स में जा चुके हैं वो मेटास्टेसिस बना देंगे बाद में अगर हम लिम्फ नोड नहीं निकालेंगे, और वी हैव टू डील विद देम, अदरवाइज कीमो या रेडियो जो भी जिस तरह की भी मैलिग्नेंसी हो उसके हिसाब से। तो लिम्फेडेनेक्टमी कर देना इज अ बेटर थिंग टू डील विद द मेटास्टेसिस। तो इसलिए इसमें ये वाला लफ्ज जरूर बोल देना चाहिए। What do you mean by intracoelic omentectomy? Ma'am, from the intracoelic, the omentum which is covering the intracoelic portion. और वो कौन सा पोर्शन होता है? Madam, I don't know. Below the transverse colon. हाँ, ट्रांसवर्स कोलन से नीचे जो है वो इंफ्राकोलिक कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें और कहाँ से आपने बायोप्सी ली, जरा दोबारा से बता दीजिए। ये तो था जो सर्जिकल, मैडम और बायोप्सी हमने कहीं से लेनी है कि नहीं लेनी, और इज इट एनफ?
Madam, infracolicomantectomy, peritoneal biopsies, 2 from the paracolic spaces and 2 from the subdiaphragmatic spaces, and retroperitoneal lymph node dissection. ठीक है. और मैडम कॉन्ट्रालैटरल ओवरी अगर इन्वॉल्व नहीं है तो उससे हमने बीएसओ तो हमने कर दी, बीएसओ तो कर दी ऑलरेडी, हमने उसका ले ली. ठीक है मैडम, बस यही बायोप्सी. इसके अलावा हमने अंडर सरफेस ऑफ डायफ्राम और अंडर सरफेस ऑफ द लिवर अगर कोई उस तरह की पैल्पेबल लीजन्स हैं तो स्क्रैपिंग्स फ्रॉम दोज एरियाज. ठीक है तो वो भी हम करेंगे क्योंकि उनके फंक्शन तो डिस्टर्ब बाद में होते हैं, पहले तो उसके सरफेस के ऊपर लीजन्स आना शुरू हो जाती हैं, which sometimes can be identified on ultrasound. ठीक है. अच्छा ये तो हो गया ये. अब आपने सारी ये वाली स्टेजिंग लेप्रोटमी कर दी. अब फर्ज किया इसके हिस्टोपैथोलॉजी पे आ जाता है कि इसमें ये स्टेज 3 है, 3A है. इसके बाद आगे आपकी फर्दर मैनेजमेंट क्या होगी? Ma'am, first of all, on follow-up, I'll counsel the patient that the type of the stage of the cancer is 3C, and it is considered an advanced stage of ovarian cancer, and that she will be needing adjuvant chemotherapy. Then I'll explain her the type of chemotherapies that are available and the cycles given and their doses and the side effects that the therapeutic agents may cause. And I'll explain her the follow-up visits that she will be having with her oncologist or gynecologist. ठीक है. मतलब अब कीमोथेरेपी का सिर्फ आपको एक बहुत ज्यादा डिटेल तो कर नहीं, लेकिन उसमें ये कि ज्यादातर हम एजेंट कौन से यूज करते हैं. 3 वीकली कोर्स होता है. कार्बोप्लाटिन एंड पेक्लोटेक्सिल. जी हाँ, ये हम इन आइदर इन एज अ सिंगल थेरेपी और इन कॉम्बिनेशन थेरेपी, और 3 हफ्ते के बाद हम देते हैं. ज्यादा से ज्यादा हम 6 साइकिल्स के लिए हम दे सकते हैं. और इसमें फिर फॉलो अप पे हमने क्या करना होता है, फॉलो अप कितने अरसे बाद करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये चीजें इम्पोर्टेंट. 3 monthly करेंगे for 2 years and then 6 monthly for 5 years and then yearly. वो तो उसका एक स्टैंडर्ड चीज है ना, वो इसलिए उसमें कोई इतने इफ एंड बट्स नहीं है. तो अब सपोज ये पेशेंट जो है ये आ जाती है हमारे पास आफ्टर 4 months. Yes, ma'am. और ये पेशेंट कहती है कि आई एम हैविंग एब्डोमिनल पेन ऑफ एंड ऑन एंड CA 125 which was returned to normal after the surgery now has again raised to 65. और जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो उसमें तकरीबन कोई 5 सेंटीमीटर का एक मैस है at the area of vault. How you will deal with it? Ma'am, first of all, I will restage the disease. And then because this is chemotherapeutic first line chemotherapy resistant case, so I'll move on to second line chemotherapy like etoposide or topotecan. इसको बेसिकली जिसमें बहुत जल्दी रिकरेंस हो जाती है उसको आपके कीमोथेरेपी से ही ट्रीट करते हो. ठीक है. तो उसमें एक जो टाइम लिमिट होती है अमूमन हम 6 months की देते हैं कि लेस देन 6 months तो आप उसको कीमोथेरेपी, और अमूमन इसमें फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी नहीं देते. अमूमन इसमें सिंगल एजेंट थेरेपी ही दी जाती है. और उसमें जो इनिशियल थेरेपी थी इसमें ज्यादातर तो कार्बोप्लेटिन या सिस्प्लेटिन की प्रेपरेशन ही ज्यादा नंबर 1 होती है. बट सपोज इफ शी हैज टेकन इट ऑलरेडी एंड एडिक्वेटली, यानी लास्ट कीमोथेरेपी के 4 महीने बाद रिकरेंस हुई. ठीक है. उसमें हम पहले वाले कोर्सेज का टाइम पीरियड उसमें से हम स्किप कर रहे हैं. तो लास्ट कीमोथेरेपी मिलने के बाद इसके 4 महीने बाद इसको रिकरेंस हुई. तो नाउ वी विल गिव हर सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी इफ पॉसिबल. एंड समटाइम्स इफ द पेशेंट इज वेरी रेजिस्टेंट टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी, और कुछ ऐसे मेलिग्नेंसीज होती हैं जो कीमो रेजिस्टेंट होती हैं, और उनमें कुछ वेरिएंट्स जो हैं एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स के, ये उनमें शामिल होते हैं. जैसे क्लियर सेल है या लो ग्रेड जो है उसकी लीजन्स हैं वो आ जाती हैं. फिर इसके अलावा एंडोमेट्रॉइड टाइप ऑफ ट्यूमर्स हैं, ये भी उनमें आ जाते हैं जो कि रिलेटिवली आर कीमो रेजिस्टेंट. लेकिन फिर भी हम उनमें जो प्राइमरी कीमोथेरेपी है वो वही देते हैं जो हम वैसे दे रहे होते हैं. तो लेकिन जो कीमो रेजिस्टेंट है उनमें फिर बहुत ज्यादा कुछ इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स होते हैं जो इसमें ट्राई किए जा सकते हैं. Bevacizumab is used. जी Madam, bevacizumab is used nowadays. Yes, immunomodulators are being used in Pakistan.
इवन शौकत खाना मैम, में तो इसमें तो मॉड्यूलेटर्स यूज होते हैं। और इसके अलावा अगर ये ईस्ट्रोजन या वो रिसेप्टर्स पॉजिटिव हैं तो बाज दफा हार्मोन्स का भी ओकेजनली, रेयरली उसका भी यूज आ जाता है, लेकिन ये वो फर्स्ट लाइन थेरेपी नहीं होती। तो बहुत ज्यादा जो कीमो रेजिस्टेंट होते हैं वहां पे इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का रोल किसी हद तक आ जाता है। तो अगर बहुत अर्ली इसका वो हो तो फिर हम कीमोथेरेपी के साथ उसको ट्रीट करेंगे। बट इफ आफ्टर मच टाइम, यानी 6 महीने से लेकर साल के बाद उसकी अगर रिकरेंस हो गई है, तो फिर उस सूरत में अगेन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेजिंग एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, क्योंकि फिर हमने उसमें अगेन फिर हम उसमें सर्जरी की तरफ जाके एंड फॉलोड बाय द कीमोथेरेपी, फिर हम इसको इस तरह से। मैम, इसमें तो ट्रिपल रिजीम की भी बात होती है ना कि डॉक्सिरुबिसिन। लेकिन ये है कि जो ट्रिपल रिजीम या 3 ड्रग कॉम्बिनेशन है, अमूमन उसकी मॉर्बिडिटी या साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। उनका जो नेट इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा देखा नहीं गया कि उसमें कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव जो इफेक्ट्स हैं वो होंगे। रादर इट एड्स टू द मॉर्बिडिटी बाय कीमोथेरेपी। केस में बेटा एक मिनट फोन से। हेलो है फर्स्ट टाइम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है, बस अभी मैं क्लास से फारिग होके फिर आती हूँ। ठीक है मैडम, एक क्वेश्चन पूछना हाँ चाहती हूँ। जी जी। मैडम, ऑप्टिमल या सब ऑप्टिमल सर्जरी का कितना रोल है इसके अंदर? इसमें देखो अब वही बात है ना कि इसमें ऑप्टिमल सब ऑप्टिमल इज एट द फर्स्ट स्टेप। जब आपने इनिशियल डीबल्किंग की, चाहे वो कीमो से पहले की या हमने कीमो के बाद की, दोनों सूरतों में हो सकती है। तो सब ऑप्टिमल सर्जरी जब भी हम करते हैं, वी लीव बिहाइंड अ लॉट ऑफ रेजिडुअल टिश्यू। रेजिडुअल टिश्यू या हमने उसमें प्रॉपर उसकी स्टेजिंग प्रोसेस हमने उसको फॉलो नहीं किया, ये दोनों चीजें इसमें आ सकती हैं। क्योंकि जो इसके मेटास्टेसिस हैं हमने उनको भी डील करना होता है, सिर्फ ये नहीं कि उसका जो प्राइमरी ट्यूमर था उसी को हमने निकाला। डी बल्किंग में ट्यूमर्स का जो उसका बल्क है वो हमने निकालना होता है, जिसमें ओमेंटल केक भी शामिल है, इंफ्राकोलिक भी शामिल है, और बाद दफा इवन टोटल ओमेंटेक्टमी भी हमें करनी पड़ती है, जिसमें इंफ्रा प्लस सुप्राकोलिक ओमेंटेक्टमी भी शामिल होती है। अगर जो उसके भी ज़्यादा मॉर्बिडिटी फिर ज्यादा हो जाती है। तो जितना उसका बल्क हम पीछे छोड़ देंगे उतना ही डिजीज के रिकरेंस के चांसेस ज्यादा हैं, उतना ही कीमो सेंसिटिविटी होने के चांसेस कम से कम होते जाते हैं और रिकरेंस डेफिनेटली उसमें बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमारा एम ही ये होता है कि हम इसमें अप्रोप्रिएट स्टेजिंग करें, उसके मेटास्टेसिस को भी एडिक्वेटली हैंडल करें, और जो प्राइमरी ट्यूमर है उसको पूरे के पूरे को निकाल दें। मैडम, पैलिएटिव केयर के अंदर क्या सब ऑप्टिमल फिर कब कर? सब ऑप्टिमल तो फिर कोई फायदा तो नहीं देगी ना सब ऑप्टिमल। हाँ नहीं, उसमें बेसिकली सब ऑप्टिमल इसीलिए हमेशा अवॉइड की जाती है, क्योंकि सब ऑप्टिमल जहां आप देंगे उसमें एक तो जाहिर है आपने एक उसको शायद गलत स्टेज पे कर दिया, तो इसलिए जो है इसमें, क्योंकि जो सेकंड लुक लेप्रोटमी होती है, यानी आपने पहले सर्जरी की, फिर उसको कीमो दी, फिर उसके बाद जो रेजिडुअल मैसेज थे उनको निकाला, उसका नेट बेनिफिट ऐसा होता नहीं है। बल्कि वो जितनी ज्यादा आप सर्जरी करते हो, फिर उसके बाद कभी कीमो दे रहे हो, कभी सर्जरी कर रहे हो, तो उसमें उसकी मॉर्बिडिटी और भी ज्यादा बढ़ रही होती है, क्योंकि सर्जरी डज हैव इट्स ओन इम्प्लीकेशंस। तो इसलिए आपकी कोशिश ये होती है कि अगर मैस रिसेक्टेबल नहीं है, टच ना करो, बजाय इसके कि आधा मैस निकाल दो और आधा पीछे छोड़ दो। उसको पहले कीमो दे के उसका साइज रिड्यूस करो, उसकी वेस्कुलरिटी कम करो एंड देन प्रोसीड। और इसके अलावा बाद दफा ऐसे भी होता है कि आपने इंटरवल करने की बजाय आपने पूरे 6 कोर्सेज कीमोथेरेपी के दिए और उसके बाद सर्जरी कर दी, जो बहुत ज्यादा इरेसेक्टेबल मैसेज होते हैं, तो उनमें आप पूरे 6 कोर्सेज देने के बाद आप फिर सर्जरी करते हो। ये चीज। मैडम एक क्वेश्चन है मेरा। मैडम जैसे अगर ये पेशेंट, अगर हमारे पास एक पेशेंट है जो कि जो है ना वो फर्टिलिटी स्पेयरिंग में आती है और वो कहती है कि भाई, और है भी उसका मतलब 1 वीक का अगर फॉर एग्जांपल डिस्जर्मेनोमा मैडम आता है, और मैं चाहती हूँ कि चलो उसकी एज भी ऐसी है और वो मतलब उसके पास एक बच्चा है एंड वी वांटेड टू डू कि अब उसकी ऐसी सर्जरी हो कि फर्टिलिटी स्पेयरिंग हो जाए, तो वहां पे अगर फॉर एग्जांपल ओवरीज अगर मैं नहीं हटाती मैडम, तो वहां पे, क्योंकि वहां पे तो मैंने फ्रोजन सेक्शंस लेने होते हैं, तो वहां पे मैं अपनी मैनेजमेंट में एग्जामिनर को कौन से वर्ड्स यूज करूं कि नहीं देखो, अब जो है ये फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी,
उसका रोल सिर्फ उसमें आता है, एक तो बॉर्डरलाइन मैलिग्नेंसीज में, एक जर्म सेल ट्यूमर्स में, और अगर एपिथेलियल ओवेरियन मैलिग्नेंसीज हैं तो उसमें स्टेज 1A और 1C तक, बल्कि ज्यादा होता है 1A तक ही, क्योंकि इसमें जो 1B है उसमें दोनों ओवरीज इन्वॉल्व है। अगर आप उसकी स्टेजिंग पे जाओ तो। मैडम जी मैडम। हाँ, एक मिनट बेटा, जरा मैं फोन सुन लूं। जी हुमैरा। हाँ। अच्छा। फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना? अच्छा। हाँ, वो ऑलमोस्ट वही है। हाँ, वो भी नॉन सिग्निफिकेंट है। हाँ, तो मैं जब कंजर्वेटिव थी, कुछ नहीं करना। अगर अर्जेंट नहीं है तो जरा 15 मिनट बाद डिस्कस करना। अच्छा चलो, हाँ बताओ फिर। हम्म हम्म हाँ ठीक है, याद आ गया। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। हम्म 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 हेलो। हाँ 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 ठीक है। हम्म हम्म और CTG भी ठीक है। मेरा ख्याल है इसको भी कंजर्वेटिवली भी करो। हाँ बस, एक वो उस हद तक ठीक है, बस कंजर्वेटिव। हाँ 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैडम वॉल्ट पे अगर रिकरेंट मैस जैसे आपने बताया था बना हुआ है तो उसकी मैडम बायोप्सी लेंगे हम? मैडम मैं नहीं, एक मिनट देखो, हमें बायोप्सी ऐसा तो नहीं होता ना कि बायोप्सी हमने पहले जो हिस्टोपैथोलॉजी है उससे हटके कुछ और हो गया होगा। द रिकरेंस ऑफ द सेम टाइप ऑफ ट्यूमर, ठीक है, उसमें फिर हमें बायोप्सी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो रिकरेंस अब किसी और ट्यूमर साइट की साइज वो सेल टाइप की तो नहीं होगी, बिकॉज वी हैव रिमूव्ड होल, दोनों ओवरीज हैं। अब उसमें अब ओवरी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मैलिग्नेंसी कर सकते हैं। उसकी कवरिंग एपिथेलियम होती है, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम में से सीरस सेल ट्यूमर भी होते हैं, म्यूसिनस ट्यूमर्स भी होते हैं, उसमें से ब्रेनर ट्यूमर भी निकल सकते हैं, उसमें से एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर भी निकल सकते हैं, उसमें से क्लियर सेल ट्यूमर्स भी निकल सकते हैं। अब जब हमने वो सोर्स ऑफ सेल्स ही रिमूव कर दिया तो उसमें से ये तो चांसेस नहीं है कि अब किसी और टाइप का ट्यूमर अब ओरिजिनेट हो जाएगा। मे बी सम माइक्रोस्कोपिक सेल्स आर देयर और विल बी देयर जो कि जिन्होंने दोबारा से रिकरेंट ट्यूमर कर दिया, या कोई लिम्फ नोड ऐसी थी जिसमें सेल्स है उसने दोबारा से रिकर कर दिया, तो दैट विल बी ऑफ द सेम हिस्टोलॉजी टाइप जो कि उसकी प्राइमरी ट्यूमर की थी। सो देयर इज नो नीड टू टेक टू रिपीट बायोप्सी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें मैम मेरे क्वेश्चन का प्लीज आंसर बता दे मैडम, एग्जामिनर को क्या कहूंगी फ्रोजन सेक्शन के बारे में। अच्छा, मैडम वो फ्रोजन मैं सेक्शन उसी का की पूछा। तरफ आ रही थी बेसिकली कि अब हमने जो इसका मेरा ख्याल है हम इस केस को तो हम कंक्लूड कर चुके हैं, ठीक है ना। फॉलो अप तक हमने डिस्कस कर लिया, फिर रिकरेंस का भी हमने डिस्कस कर लिया कि रिकरेंस होगी तो इसमें हम क्या ये करेंगे। बात कर रहे थे फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरीज की, ठीक है, हम इस पे थे कि फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी में ही फिर जो फ्रोजन सेक्शन वाली चीज है उसका किसी हद तक रोल आ जाता है। अब जो फ्रोजन सेक्शन टेक्निक है उसके बारे में आपका क्या कंसेप्ट है, आप लोगों के अपने ज़हन में क्या चीज है?
मैडम व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रोजन सेक्शन? मैडम ऑन स्पॉट डायग्नोसिस करना, मतलब पैथोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके स्पॉट आप क्या ये डायग्नोसिस। करते हो कि आपको आपने पेशेंट को ओपन किया, लेप्रोटमी की, उस पे आपने टिश्यू लिया और उसी वक्त किसी को भगाया कि जाके लेबोरेटरी में चेक कराओ, क्या ऐसे करते हैं? नहीं मैडम, पैथोलॉजिस्ट सामने होगा ना, और वो फिर वही आपने पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को या पैथोलॉजिस्ट को प्री हैंड इन्फॉर्म करना है, ठीक है? वो वहीं पे देयर एंड देन एक जो रैपिड हिस्टोलॉजी टाइप है, अब इसमें तकरीबन इसकी सेंसिटिविटी 60-65% तक होती है, यानी फिर भी एरर्स हैं कि इसमें हो सकता है हमें मैलिग्नेंसी डायग्नोज ना हो या मैलिग्नेंसी डायग्नोज हो भी जाए, क्योंकि जो आम हिस्टोलॉजी जो होती है इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री के साथ की जाती है, जो ज्यादा, वो हमेशा ज्यादा प्रिसाइज होती है। इसमें सेल टाइप्स का बिल्कुल सही पता चल जाता है। दैट मिनिमम स्टेज 3-4 डेज। अब जो हम इसकी रैपिड हिस्टोलॉजी करेंगे उस पे चांसेस होते हैं हमेशा एरर के, तो इस वजह से ये अगरचे बहुत गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, बट एटलीस्ट फॉर फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरीज इन अ यंग पेशेंट या नली पैरा पेशेंट, तो वहां पे, और वो भी अगर हमें सर्जिकल स्टेज लग रही है 1A, और ये हम बात कर रहे थे इसमें कि 1B में चूंकि दोनों ओवरीज इन्वॉल्व होती हैं, वहां पे आप कंसीडर नहीं करते हो। 1A में सिंगल ओवरी इन्वॉल्व है, वो आपने एक एडनेक्सा निकाल दिया, सल्पिंगोफ्रेक्टमी कर दी। 1C में भी एक ओवरी भी हो सकती है, 2 ओवरी भी हो सकती है। 2 ओवरीज पे आप फर्टिलिटी स्पेयरिंग नहीं कर सकते अगर दोनों ओवरीज का प्रॉब्लम है तो। अब जो सिंगल ओवरी की इन्वॉल्वमेंट है उस पे तो आप फर्टिलिटी स्पेयरिंग करोगे। अब उसमें फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी आपने जर्म सेल ट्यूमर में इट ऑलवेज वर्क्स, यानी अगर जर्म सेल ट्यूमर है, बाय ट्यूमर मार्कर्स, बाय अल्ट्रासाउंड और फर्दर इमेजिंग स्टडीज और उसके करैक्टर से और उसको देखने नेकेड आई पेरेंट से आपको लगा कि ये जो है वो है ये जर्म सेल ट्यूमर है, तो उसमें तो हम थोड़ा सा एडवांस्ड स्टेजेस पे भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत कीमो सेंसिटिव ट्यूमर्स होते हैं। तो कीमो सेंसिटिव ट्यूमर्स को तो हम कीमोथेरेपी के साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेट, और वहां पे अगर फ्रोजन सेक्शन की टेक्निक अवेलेबल नहीं है तो उस सूरत में हम पेशेंट को पहले से हमने ब्रीफ किया होगा कि अगर हमें लगा कि हिस्टोपैथोलॉजी पे कंफर्म हुआ कि ये जो है वो कोई और टिश्यू टाइप है अदर देन द जर्म सेल्स, तो उसमें फिर हम वी कैन गो बैक, बट एट द मोमेंट वी शुड डू द फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी, और उसमें स्टेज 1A 1C से आगे भी आप जा सकते हो इन द जर्म सेल ट्यूमर्स। अलबत्ता जो एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स हैं वहां पे आप स्टेज 1A मैक्सिमम स्टेज 1C से ज्यादा आगे नहीं जा सकते फॉर द फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी, क्योंकि उसके बाद जो उसके लिम्फ नोड मेटास्टेसिस हैं, उसकी सेकेंडरीज हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो जाती हैं, तो इसलिए फिर उसमें हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी का इतना ज्यादा रोल नहीं रहता। बट एज पर केसेस ऑफ बॉर्डर लाइन, ये मेरा ख्याल है क्लियर है। अब ये जो फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी और फ्रोजन सेक्शन है, मैम फ्रोजन सेक्शन डिजीज ओवरी का लेंगे जी डिजीज्ड ओवरी का लेंगे। फ्रोजन सेक्शन का मतलब ये है कि आपने ये देखना है ये ट्यूमर कितना को मैलिग्नेंट है, या ये ट्यूमर से लेंगे, कहाँ से लेंगे? आप उससे ट्यूमर के अंदर से टिश्यू आपने निकाला और उसको दिया कि ये इसको टेस्ट करके हमें बताओ कि इसकी ट्यूमर टाइप क्या है। अगर आपको लगा कि ये एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर की थोड़ी सी जरा फर्क होता है, लेकिन जैसे एंडोमेट्रॉइड सेल कार्सिनोमास होते हैं या उसमें अमूमन सिस्टिक टिश्यू नहीं होते, या ब्रेनर्स ट्यूमर्स होते हैं, ब्रेनर्स ट्यूमर में भी उस तरह से सिस्टिक एलिमेंट्स कम होते हैं, तो वहां पे आपको वो बताएंगे कि ये एपिथेलियल है या जर्म सेल है। जर्म सेल में तो आप जरूर उसमें फर्टिलिटी स्पेयरिंग ही कर दो, लेकिन अगर अदर देन जर्म सेल ट्यूमर्स उसकी टिश्यू टाइपिंग है तो फिर उसमें फिर आपको स्टेज करना पड़ेगा उसको। स्टेज मतलब ये कि सिर्फ एक ओवरी इन्वॉल्व है, दूसरी बिल्कुल ठीक है, और आपको कोई मेंटल या उस तरह से वो सारी चीजें नहीं लग रही, क्योंकि अगर आपने फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी करनी है वो तो आप उसी वक्त कर सकते हो ना कि आपने सिर्फ एक एडनेक्सा निकाला, बाकी चीजों को तो आप नहीं देख रहे हो कि कहाँ तक फैला हुआ है। आपने तो पेरेंट ही देखा, दूसरी ओवरी ट्यूब ठीक है, यूट्रस ठीक है, ओमेंटम ठीक है, और कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आप फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी के साथ साथ स्टेजिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट करोगे, यानी वो जो सारी स्टेजिंग वाली चीजें हैं
हमने अगर एसाइटिस है तो एसाइटिस हो तो थोड़ा सा वो जरा रिस्की हो जाता है। और ये बाकी जो आपने फ्लूइड को डाला और उसके बाद उसको लिया वो पेरिटोनियल फ्लूइड, फिर आपने जो है वो मेंटल बायोप्सी भी ली, आपने उसका सारे लिम्फ नोड्स वगैरह देखे, पेरिटोनियल बायोप्सीज ली और दूसरी ओवरी को आपने देखा। अब बाद दफा ये होता है, अब ओवेरियन बायोप्सी लेने की जो बात है जो नॉर्मल ओवरी में से, उसमें एक ये जो ग्रे एरिया होता है वो ये होता है कि इस जो ये हैं जो मेटास्टेसिस जो डिपॉजिट्स हैं वो किसी एक सिंगल जगह पे नहीं होते ओवरी में, और यही एंडोमेट्रियल सीए का भी सिनेरियो होता है कि वो मल्टीफोकल होता है, माइक्रोस्कोपिक होगा, मल्टीफोकल होगा, आपको नहीं पता वो कहाँ पे है, आप एक बायोप्सी लेते हो दैट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव और एक्चुअली हो सकता है उसमें माइक्रोस्कोपिक डिपॉजिट्स हों, तो आपने तो सिर्फ एक बायोप्सी ली, बायोप्सी लेने से आप ओवेरियन रिजर्व को बहुत कम कर रहे होते हैं। सो इट्स अ बिट कंट्रोवर्शियल कि वेदर टू टेक बायोप्सी फ्रॉम द अदर ओवरी और नॉट। तो ये चीज है जो उसमें थोड़ी सी जरा ग्रे एरिया वाली चीज आ जाती है, लेकिन आप बाकी सारे जो टिश्यू की सैंपलिंग है वो आप पूरे का पूरा स्टेजिंग प्रोसेस कंप्लीट करोगे, इवन विद फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी, इवन विद द बॉर्डरलाइन मैलिग्नेंसीज। बॉर्डरलाइन मैलिग्नेंसी वो होती है जो बाद में लगता है इसके साथ, और भी मैंने अगर मैं फर्टिलिटी स्पेयरिंग कर रही हूँ, जैसे मैं फ्रोजन सेक्शंस ले रही हूँ, तो मैंने और को भी, और जो ऑर्गन्स है उनको भी सैंपल करना होगा। नहीं, हम सिर्फ हम फ्रोजन सेक्शन उस वक्त नहीं कर रहे, फ्रोजन सेक्शन हमने सिर्फ उस ट्यूमर का किया टू नो द टिश्यू टाइप। जी ठीक है, लेकिन और की फ्रोजन सेक्शन हमने सिर्फ उसी का किया और हमने उसको जो है वो बाकी हमने सैंपलिंग लेके बाद में हमने उसका प्रोसीजर कंप्लीट किया, क्योंकि मैंने बताया ना कि रैपिड एनालिसिस जो होता है जो फ्रोजन सेक्शन में होता है कि आधे घंटे में वो आपको बता दें कि ये कौन सा टिश्यू है, मैलिग्नेंट है या नहीं है, लेकिन उसमें हमेशा फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव का बल्कि ज्यादा चांस होता है, तो ये चीजें उसमें हो सकती हैं। हम एक बायोप्सी, आप सब लोगों को ये पता होगा कि जब हम बायोप्सी लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं तो उस बायोप्सी की रिपोर्ट आते आते कम से कम 3-4 दिन लगते हैं, वो भी एक प्रोविजनल रिपोर्ट होती है, वरना तो हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं उसकी बायोप्सी रिपोर्ट आने में। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल दैट 100% यू कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन फ्रोजन सेक्शन टेक्निक? तो उसमें हमेशा होता है बाद में आपने तो सिर्फ उस वक्त डिसाइड करना है, डिसाइड करने के लिए कि इस वक्त मैं सिर्फ ये ओवरी ट्यूब निकालूं या बाकी भी सारा कुछ निकाल दूं, तो आपने सिर्फ उस वक्त का डिसीजन करना है, बाद में हो सकता है उसकी हिस्टोपैथोलॉजी फर्क आए, then you have to decide. So it means that I have to take a frozen section of the disease ovary, and after its conclusion I have to take biopsy from the other surrounding from the other area, क्योंकि fertility sparing surgery में आप हमेशा बाकी सैंपल भी लेते हैं। ओके और ये भी है कि इसमें जो बॉर्डरलाइन मैलिग्नेंसी वाले केसेस हैं उनमें भी आप लेते हैं, so as not to skip any tissue which may be left behind, या जो कि हमें स्टेजिंग प्रोसेस में जो है वो कोई थोड़ा सा उसमें मसला करे, क्योंकि देखो ये है देयर एंड देन डिसीजंस। मैम दो केसेस में हम फ्रोजन सेक्शन लेंगे, एक जब हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग कर रहे होंगे और दूसरा जो है वो जब हमने बॉर्डरलाइन ट्यूमर सस्पेक्ट करे होंगे, तो उसमें बॉर्डरलाइन में जिसमें हमें लगा के इसमें कोई ओवरीज में से लेंगे ना, डिजीज्ड ओवरी में से भी और नॉर्मल साइड दूसरी साइड की भी नॉर्मल ओवरी से, लेकिन बाकी सारे केसेस में हमने डिजीज ओवरी में से सिर्फ फ्रोजन सेक्शन लेना है। नहीं, आप दूसरी ओवरी में से क्या कह रही हो? दूसरी ओवरी में से हम कब लेंगे सैंपल, यानी जो नॉर्मल ओवरी है उसमें से कब लेंगे सैंपल? मैम जब आपने कहा ना कि जब हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग करेंगे और जब हमारे पास बॉर्डर लाइन सिचुएशन होगी तो उसमें हमने दोनों, उसमें मैंने नॉर्मल ओवरी का उसमें भी नहीं बोला, मैंने कहा है कि वो कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल मींस कि इट्स अ मल्टीफोकल मैलिग्नेंसी at same time बहुत सारे छोटे एरियाज में होती है, एंड सिमिलरली अकर्स इन द एंडोमेट्रियल सीए, मल्टीफोकल होता है। तो हो सकता है जिस एरिया से आप बायोप्सी लो वहां पे मैलिग्नेंसी हो ही ना, एंड यू विल गेट अ फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट। सो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारी रिकमेंडेशंस में नाउ दिस इज आउट टू टेक बायोप्सी फ्रॉम अ नॉर्मल लुकिंग हेल्दी ओवरी। आप थोड़ा सा तो नेकेड आई पेरेंट से आपको पता चल जाता है, माइक्रोस्कोपिक तो नहीं आप आंखों से देख सकते, और लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि अगर फर्ज किया ये फर्टिलिटी स्पेयरिंग जैसे जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं, जर्म सेल ट्यूमर्स में तो अमूमन बायलैटरल हों तो उसमें ज्यादा हमें चांसेस होते हैं कि प्रोबेबली ये मैलिग्नेंट होंगे,
लेकिन अगर उसमें है ये कीमो सेंसिटिव है, कीमो और बॉर्डर लाइन में भी कीमो बहुत अच्छा काम करती है, तो उसमें तो इट विल डील विद द अदर ओवेरियन मेटास्टेसिस। अगर दूसरी ओवरी में है भी तो उसको डील कर लेगी। वाई टू रिड्यूस द ओवेरियन रिजर्व बाय डूइंग बायोप्सीज। अब आप बायोप्सी करते हो या ओवरी में कॉटरी करते हो, ये सारी चीजें ओवेरियन रिजर्व को कम करते हैं। या इवन जब आप एक ओवेरियन सिस्ट निकालते भी हो, इन्यूक्लिएट भी करते हो, आप ओवेरियन रिजर्व उससे भी कम कर रहे होते हो, लेकिन जाहिर है हमने ट्रीटमेंट तो करनी होती है। बट नेचुरली दिस विल रिड्यूस द ओवेरियन रिजर्व। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंडोमेट्रियोमा जब आप निकालते हैं, इन्यूक्लिएट करते हैं, तो उससे भी ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है, और जाहिर है हमने नेचुरली उसको निकालना भी है। तो ये वो चीजें हैं जिनके कुछ एंटीसिपेटेड इफेक्ट्स होते हैं, जो कि उनके हैं इफेक्ट्स हैं, लेकिन हमने ट्रीटमेंट तो ऑफर करनी होती है। बट व्हाई नॉट टू बाईपास अ थिंग व्हिच कैन बी डेल्ट विद बाय अदर थेरेपीज, और जिसका हमें बहुत ज्यादा हो सकता है फायदा भी ना हो। मैम सीटी विद कंट्रास्ट पे हमें क्या नजर आएगा जो प्लेन सीटी पे नहीं आएगा? ये डिफरेंस देखो, सीटी असल में जो सीटी विद कंट्रास्ट है वो बहुत सारे टिश्यू डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी कर देता है। अदरवाइज बार दफा कुछ आर्टिफैक्ट्स आपको हो सकता है एक मैस की तरह से लगे, और ये हमारी ऑब्जर्वेशन भी है कि बार दफा ऐसे जैसे लिम्फ नोड्स का भी है, या जो मैसेज होते हैं उनकी भी टिश्यू डिफरेंशिएशन प्रॉपर वो हमेशा कंट्रास्ट के साथ बेहतर आती है। सिमिलरली विद द एमआरआई, कंट्रास्ट वाली चीज आप सिर्फ प्रेगनेंसीज में यूज नहीं करते हो या रीनल कॉम्प्रोमाइजेस में यूज नहीं करते हो, तो वहां ये दो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं। लेकिन हाँ जी, मैंने कहा वो ये जो आप ट्रोकेट बायोप्सी की बात कर रही थी, ये अर्ली स्टेज डिजीज में एक हम पहले एक चीज कंप्लीट कर ले, जो हम एक मिनट बेटा, जो हम चीज डिस्कस कर रहे होते हैं ना, हमें पहले वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ठीक है? तो अभी हम सीटी विद कंट्रास्ट की बात कर रहे थे। तो सीटी विद कंट्रास्ट जो है, आपने अगर टिश्यू डिफरेंशिएशन देखनी है, जैसे फर्ज किया लिवर में मेटास्टेसिस है, अब लिवर के मेटास्टेसिस बहुत अच्छी तरह लाइन आउट हो जाएंगे अगर हमने कंट्रास्ट के साथ देखा होगा। और मेंटल मेटास्टेसिस, लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, ये सारी चीजें हैं हमें बहुत ट्रूली और सही तरीके से हमें पता चलेंगी अगर हम कंट्रास्ट के साथ करवाएंगे। क्योंकि बार दफा ऐसे होता है कि हमें एक चीज, एक मैस, एक लगता है कि ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ है, लेकिन जब हम उसको कंट्रास्ट के साथ करते हैं तो हमें उसकी एक्चुअल जो उसकी लिमिट्स हैं, जो एक्चुअल उसका टिश्यू करेक्टर है, जो उस मैस का करेक्टर है या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं, वो हमें ज्यादा बेहतर लाइन आउट हो जाती हैं। तो इस वजह से कंट्रास्ट के साथ ये हमेशा बेहतर होता है। लेकिन कंट्रास्ट का ज़ाहिर है ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद उसकी फिल्ट्रेशन थ्रू किडनीज, रीनल कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होने चाहिए, एंड द पेशेंट हैज टू टेक मोर एंड मोर फ्लूइड इनटेक आफ्टर द कंट्रास्ट स्टडी इज ओवर। ये हर कंट्रास्ट के साथ जो है वो हमें कुछ हमारी प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं। चलें जी, अब दूसरा सवाल जो आप कर रहे थे, आप बताइए। जी मैम, वो मैं कह रही थी कि ट्रोकेट बायोप्सी आप बता रही थी, वो अर्ली डिजीज में तो नहीं करेंगे क्योंकि वो डिजीज नहीं, देखो अर्ली डिजीज पे तो हम क्यों करेंगे? अब देखो आरएमआई आपने कैलकुलेट किया लेस देन 25 है, उस पे आप फर्दर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो माइल्ड डिजीज है। इसके अलावा फिर आरएमआई जो दूसरा 25 से 250 तक होता है वो मॉडरेट है। मॉडरेट में प्लस माइनस रिस्क होते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन उसमें स्टेजिंग हमने फिर भी करनी होती है। फॉर मॉडरेट हमने स्टेजिंग करनी है। मोर देन 250 तो उसमें रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी स्टिल मोर हाई। अब इसमें जो 25 से 250 तक है उसमें रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इज अप टू 20%। जो मोर देन 25 है उसमें तो 70-75% तक चला जाता है। तो जो 20% का भी रिस्क है उसको भी हमने उसी तरह से एड्रेस करना है, क्योंकि वो 20% रिस्क काफी ज्यादा है। तो इसलिए उसमें भी फिर हम जो है वो एक सर्जरी की तरफ, सर्जिकल ऑप्शन पे चले जाते हैं, जबकि लेस देन 25 पे हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, या हम जो यूनिलैटरल एक ओवेरियन सिस्ट है उसको निकाल सकते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। तो इसमें जो मॉडरेट या हाई रिस्क वाले केसेस हैं उनको हमने उसी तरह से मैनेज करना है। अलबत्ता मॉडरेट केसेस में हम कर सकते हैं कंजर्वेटिव सर्जरी या फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी, और इसके साथ साथ स्टेजिंग प्रोसेस। जो मोर देन 250 है उसमें कंजर्वेटिव या फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी का कोई ऐसा रोल नहीं रह जाता।
तो वहां पे तो बहुत एडवांस्ड सर्जरी है, उसमें फिर प्रोबेबली अनलेस कि वो जर्म सेल ट्यूमर हो और यंग एज पेशेंट में, तो वहां पे किसी हद तक हम कह सकते हैं, लेकिन अदरवाइज उसमें फिर हमें एग्रेसिव जो है वो उस पे डीबल्किंग की तरफ जाना पड़ता है। तो अब मेरा ख्याल है एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लें। बॉर्डर लाइन की भी मेरा ख्याल है हमने बात कर ली है। शायद बॉर्डर लाइन से रिलेटेड आपके क्या इश्यूज थे? हाँ जी, बॉर्डर लाइन का किसी ने क्वेश्चन किया था, बाकी तो हमने चीजें कवर कर ली जो आपने क्वेश्चन पूछे थे। बॉर्डर लाइन अमूमन जो है वो 20% जो बॉर्डर लाइन ट्यूमर्स हैं वो हमें अल्ट्रासाउंड पे सिंपल सिस्ट के तौर पे नजर आएंगे। तो इसलिए जो परसिस्टेंट या एक साइज से भरी हुई सिस्ट होती है, सिंपल सिस्ट भी हो, उसको भी हमें ड्यूली एड्रेस करना चाहिए। यानी ये अगर हम कहें कि प्री मेनोपॉजल एज में मोर देन 7 सेंटीमीटर, पोस्ट मेनोपॉजल एज में मोर देन 5 सेंटीमीटर, परसिस्टेंट है, कम नहीं हो रही, या आपने उसकी जो है वो ऑब्जर्वेशन की या उसको देखा, या बाद दफा ओसीपीज का भी रोल आ जाता है। अगर कोई पीआईडी वाली चीज लग रही है तो फिर उसमें एंटीबायोटिक तो वैसे देने का कोई रोल नहीं है। ओसीपीज भी सिर्फ नई सिस्ट बनाने से रोकती है, जो मौजूदा सिस्ट है उसको रिग्रेस नहीं करेगी, इट विल रिग्रेस विद इट्स ओन टाइम। तो वहां पे जो है वो आप उसमें उसको, लेकिन अगर परसिस्ट कर रही है तो फिर उसको जरूर देखो। more than 7 centimeter in premenopausal and more than 5 centimeter in postmenopausal। तो उसमें ये वाली चीजें हैं जो बॉर्डर लाइन वाले क्राइटेरिया में आ सकती हैं। और या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्ट जिसमें उस तरह से ट्रू क्राइटेरिया नहीं फुलफिल होता जो कि एक मैलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट का होता है, यानी उसमें सॉलिड एरियाज होंगे बट लेस देन 7 मिलीमीटर, उसमें वॉल थिकनेस हो सकती है, उसमें सेप्टेट हो सकता है। लेकिन जहाँ पे सॉलिड एरियाज आ जाते हैं वहां पे कोई भी सिस्ट, ऐसी कॉम्प्लेक्स सिस्ट जिसमें जो मल्टी सेप्टेट है, उसमें रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इज अप टू 8%। यानी मल्टी सेप्टेट जिसमें कोई सॉलिड एरियाज नहीं है उसमें भी रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी कैन बी अप टू 8%। और जो जिन सिस्ट में सॉलिड एरियाज आ जाते हैं उनमें फिर जो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी है दैट गोज अप टू 35 to 40%। तो ये चीजें हैं जिनको फिर हमें बहुत जरा देखना पड़ता है, चाहे उसका साइज जो है वो 5 to 6 सेंटीमीटर ही क्यों ना हो। तो ये दो चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, यानी एक मल्टी सेप्टेट होना और एक उसमें सॉलिड एरियाज का होना एक खास साइज से ज्यादा। तो इसलिए ये जो चीजें हैं उसमें फिर बॉर्डर लाइन में अमूमन यही आती हैं। या बाद दफा ऐसे भी होता है कि एक बड़ी सिस्ट भी होती है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट भी होती है, देखने में बड़ी एग्रेसिव भी लगती है, लेकिन जब हम हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं तो वो बॉर्डर लाइन मैलिग्नेंसी पे आ जाती है। अब बॉर्डर लाइन मैलिग्नेंसी का तो आपको हिस्टोपैथोलॉजी पे ही पता चलेगा, लेकिन जब हम इसको ऐसे पेशेंट्स को खोलते हैं जो हु आर कैंडिडेट फॉर स्टेजिंग लेप्रोटमी, तो उसमें हमने स्टेजिंग तो सारी की हुई होती है, लेकिन बॉर्डर लाइन मैलिग्नेंसी में हमें अमूमन कीमोथेरेपी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसमें अमूमन कीमोथेरेपी का रोल उस तरह से नहीं आ जाता बॉर्डर लाइन। अब अगर हमने कंजर्वेटिव सर्जरी ऐसे में की हुई हो तो फिर उसमें फर्दर सर्जरी की भी जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि हमने बाकी जो सैंपल लिए थे दैट ऑल आर नेगेटिव। तो इसमें फर्टिलिटी स्पेयरिंग का रोल आ जाता है अगर हमने ट्रू कट बायोप्सी से बॉर्डर लाइन मैलिग्नेंसी देखी हो तो। बाकी जो ओवेरियन सिस्ट हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो आपको काफी हद तक पता ही है, उसमें उसकी ट्रीटमेंट इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन जो कि हम नॉन प्रेग्नेंट में करते हैं। अलबत्ता अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में डायग्नोज हो जाए तो उसमें कम से कम मिनिमम फीटल मैच्योरिटी का जरूर देख लो, और ताकि फिर सेक्शन करो और साथ ही प्रोसीड कर जाओ। और अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो डेफिनेटली फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में है उसमें एक्सटेंट ऑफ द डिजीज के हिसाब से, उसमें सेवेरिटी ऑफ सिचुएशन के हिसाब से आपने डिसाइड करनी है। पेशेंट की लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो अगर ये एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स हैं ऑफ स्टेज 1 बियॉन्ड, तो फिर उसमें हमें फिर हम प्रेगनेंसी को लेके बहुत लंबा चल नहीं सकते। तो इसलिए जो है वो इसमें मतलब हमें उसी तरह से हमें ट्रीट करना पड़ेगा जैसे हम एक विदाउट प्रेगनेंसी उसको डील कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है अब यहाँ में हम स्टॉप करें। तो अगला आपका जो था सेशन था वो मेरा ख्याल है आपने वल्वो वेजाइनल मैलिग्नेंसीज का
मैम ब्रेस्ट मैडम प्रेगनेंसी भी करवा दें जी मैडम CA 1 to 5 लेवल प्रेगनेंसी से इफेक्ट जी नहीं होता? नहीं, CA 1 to 5 में फॉल्स पॉजिटिव बहुत होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इटसेल्फ कैन रेज CA 1 to 5, उसमें बहुत सारी चेंजेस होती हैं जो कि CA 1 to 5 रेज कर देती हैं, इस वजह से हम बहुत ज्यादा रिलाई उस पर नहीं करते। लेकिन जो अल्ट्रासाउंड फीचर्स वगैरह हैं वो हम कर सकते हैं उसमें। अब CA 1 to 5 सिर्फ एक ही पैरामीटर तो नहीं है। अगर फर्ज किया कोई सॉलिड ट्यूमर आ गया और यंग एज पेशेंट, ज्यादातर यंग एज पेशेंट ही होते हैं ना जो प्रेग्नेंट होते हैं, तो उनमें फिर जर्म सेल्स की पॉसिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो जर्म सेल के ट्यूमर मार्कर्स तो फिर और हैं, वो उसमें CA 1 to 5 तो एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स के हैं, विच हैज मेनी अदर सोर्सेस, यानी उसके अपने जो सोर्सेज हैं वो और ज्यादा हैं, और इसको अगर ज्यादा स्पेसिफिक मार्कर करना हो तो फिर उसमें जो है वो HE4 होता है, ह्यूमन एपिडिडर्मस प्रोटीन 4। वो किसी और चीज से उसमें वेरिएशंस नहीं आती, तो वो हम कर सकते हैं और वो होता भी है। तो बाकी जो है कि अगर सॉलिड ट्यूमर्स हैं, यानी आपको लगता है कि ये जर्म सेल ट्यूमर्स हैं जिसमें मल्टीपोटेंट सेल्स वाले स्ट्रक्चर्स हैं, तो फिर आप उस सूरत में उसके जर्म सेल ट्यूमर्स करवाओगे। जो अब ज़ाहिर जर्म सेल ट्यूमर मार्कर जो हैं उनमें HCG इज अगेन इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेगनेंसी, LDH बहुत कम, इनहिबिन भी जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, लेकिन LDH AFP ये दोनों आप फिर करवा सकते हो जर्म सेल ट्यूमर्स के लिए। बाकी जो ट्यूमर मार्कर्स हैं वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो ज्यादातर आप बेसिकली इमेजिंग स्टडीज पे ही डिपेंड कर रहे होते। ठीक है, तो चलो अब आप हाँ जी या फिर MRI कराएंगे? देखो MRI देखो MRI होता है जो सॉफ्ट टिश्यू डिफरेंशिएशन, जैसे हम इसमें करवाते हैं ये एंडोमेट्रियल CA में। अब हमने एंडोमेट्रियल CA की उसकी मायोमेट्रियल पेनिट्रेशन देखनी है तो हम MRI करेंगे, हम CT नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो डिफरेंट टिश्यूज की डिफरेंशिएशन है वो MRI पे हमें ज्यादा पता चल जाएगी। लेकिन डिस्टेंट मेटास्टेसिस, आप एक सिंपल सा रूल याद रखो, अगर आपने लोकली फर्ज किया सिस्ट डिफरेंशिएशन करनी है, यानी आपको अल्ट्रासाउंड पे बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता चल रही, लेकिन आपने सिर्फ सिस्ट की डिफरेंशिएशन करनी है फ्रॉम द अदर मैसेज, या आपने यूट्रस का स्ट्रक्चर बहुत क्लोजली देखना है, तो फिर उस सूरत में MRI वुड बी अ बेटर चॉइस। और लेकिन ज़ाहिर इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी तो होती हैं इसमें, और लेकिन जहां पे आपने डिस्टेंट मेटास्टेसिस देखनी हो वहां पे आप CT करवा लें। बस ये एक सिंपल सा रूल याद रखें, बाकी बहुत ज्यादा फाइन डिटेल्स में ना जाए, क्योंकि इसको इस तरह से फिर सॉर्ट आउट करना बाज़ दफा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में मैम CT एब्डोमेन फिर करवाएंगे हम प्रेगनेंसी में? अगर नहीं, हम नहीं CT नहीं हम करवाएंगे, हम ज्यादातर अल्ट्रासाउंड फीचर्स पे ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि देखो CT में तो देखो इतना ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर होता है। ठीक है, उसमें तो नहीं करवा सकते, लेकिन फॉर लाइफ सेविंग मेजर्स कभी कभी ऐसे होता है, जैसे HRCT जो कोविड के जमाने में था, शील्डिंग के साथ हम करवाते ही थे चेस्ट का, लेकिन चेस्ट का तो चलो शील्डिंग के साथ हो गया, अगर अपने एब्डोमेन पेल्विस का कराना है तो उसमें तो नहीं, फिर फीटल एक्सपोजर तो हो सकता है, और फीटल एक्सपोजर से ज्यादा उसके फीटल गोनेट्स पे इफेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से आप उसको बहुत अशद जरूरत के तहत आप करवाओगे, वरना नॉट एज अ बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन, नॉट इवन फॉर सॉर्टिंग आउट दैट ओवेरियन सिस्ट, क्योंकि अगर आपको उस पे आप 3D 4D पे जा सकते हैं अल्ट्रासाउंड पे उसकी मजीद उसके लिए, या फिर आप MRI करवा सकते हैं, अगरचे MRI के अपने कुछ पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो हमने पिछली दफा भी डिस्कस किए थे। ठीक है, चलें जी, अब अगली क्लास में हम वल्बोवेजाइनल और ब्रेस्ट CA इन प्रेगनेंसी, ये तीनों चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम, ओके, अल्लाह हाफिज।